So this is your number, world of number. Okay, so world of number is divided into two parts. First is your real number. This is your real number. Real number. Okay, real number. Now you can say that, sir, only half of the world, this number system, right? Half of the numbers you are saying as real number. Okay, so what is this other half? ये other half क्या होगा? That should be my problem, right? So हम देखते हैं ये other half क्या है, ठीक है? But अभी हम real number की बात करते हैं. Okay, now real number is actually half of the all number. Okay, right? Now this real number, it's like, suppose there's only two countries in the world, only two countries, है ना? इंडिया और यूएस, सिर्फ दो कंट्री है. तो इंडिया रियल नंबर है और यूएस, इट इज समथिंग कॉल्ड इमेजिनरी नंबर. इमेजिनरी नंबर, ठीक है? ये क्या होता है हम लोग बाद में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है? बट देयर समथिंग कॉल्ड इमेजिनरी नंबर्स. इमेजिनरी होते वो लोग, ठीक है? अब इमेजिनरी कैसे होते हैं वो हम लोग देखेंगे, ठीक है? So I can say that the number is like countries, है ना? So suppose सिर्फ दो कंट्री हैं, इंडिया एंड यूएस. So India is your real number and US is your imaginary number. तो हमको यूएस के बारे में ज्यादा नहीं पता है, तो हम उसको बाद में देखेंगे ना. इंडिया, अब इंडिया जो है वो ऑब्वियसली डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइडेड है ना? सो अभी हम बोलते हैं कि ये दो स्टेट में डिवाइड है ना? सो आई कैन से दैट दिस रियल नंबर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ठीक है? राइट, बताओ ये दो पार्ट्स कौन से हैं? कैन एनीवन टेल मी दीस टू पार्ट्स? Sir, these are rational and irrational numbers. Very good, very smart. Right, so these are rational and irrational. Okay, Irrational. yeah, sorry, my handwriting is horrible. Okay, so I'll just show you this table. Okay, so yeah, see this. So I can say that this real number, which is half of the number universe, is divided into two parts, rational number and irrational number. Okay, so first we have to understand that what is rational number and what is irrational number. Okay, so सबको समझो. Now the definition of rational number says that if any number can be written in terms of p by q, ठीक है? p by q में. So Vishka, I said that the number, any number, right? If you talk about the world of numbers, right? It is divided into two parts, real number and imaginary number. So imaginary number, we won't study for now. Then the half of the real numbers, okay? This real number, okay, is divided into two parts. For example, suppose it is India, okay? India, right? India is divided into two parts, Hindi speaking and non-Hindi speaking, है ना? Like that, non-Hindi speaking, right? So I can say that Hindi speaking is your rational number and non-Hindi speaking is irrational number. समझ में आया? ये समझ में आया सबको? Yes, sir. Right? You just Yes, sir. raise your hand. Don't need to speak. Okay, you need not to speak. Right? Now suppose this rational number. So first of all, we have to know that what is rational number, है ना? So देखो, if any number can be written in form of p by q, ठीक है? Can be written in form of p by q.
then it is your rational number. तो साइन यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है ना. जैसे देखो एग्जांपल -3. So can you tell me what is p in -3? यहाँ पे p क्या है, q क्या है? सर -3 p होगा. Sir, P is equal to 3 and Q equals to 1. See, yes, p is equal to -3 and q is equal to 1, right? And just message the chat box. Okay, no need to say, right? Very good. So if I'm talking about 0, it is 0 by 1. 7, 7 by 1, है ना? Then 11 by 2, -3 by 5, 4 by 7. So these all are rational numbers, right? Because this p by q should be integers, ना? They should be integers. ठीक है? So you understood what is rational number? So rational numbers are numbers which can be written in form of p by q and q should not be equal to 0. ठीक है? सबको समझ में आना चाहिए. Rational number are those numbers which can be written in form of p by q and q should not be 0. Because ध्यान दो, अगर मैं बोलूं what is 10 by 0? 10 by 0 क्या होता है? बताओ 10 by 0 क्या होता है? 0. नहीं 0. नहीं बिल्कुल नहीं. और मैसेज करो प्राइवेटली मैसेज करो. ओके नहीं वेट 10 by 0 क्या होता है? एग्जैक्टली तन्मय. ध्यान दो, राइट? ये कॉपी में नोट कर लो, ठीक है? एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज, ये क्या साइन है? व्हाट इज दिस साइन? इन्फिनिटी और अनडिफाइंड. ठीक है, राइट? अनडिफाइंड. सो एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज अनडिफाइंड. लिख लो, ठीक है? सो वी शुड नॉट डिवाइड एनीथिंग बाय 0. कहीं भी एनीथिंग डिवाइड बाय 0 है वो अनडिफाइंड होगा. ठीक है? वेरी गुड आदर्श, रागिनी. ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये अपने कॉपी में लिख लो अभी. एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज योर अनडिफाइंड नंबर, इट इज नॉट डिफाइंड. ठीक है? सो इसीलिए दिस q should not be equal to 0, right? Now this is about rational number. What about irrational number? Obviously उसका उल्टा होगा. जो rational नहीं है वो irrational है ना? Means irrational number are the numbers which cannot be written in form of p by q. अब वो कैसे होगा वो हम लोग देखेंगे धीरे धीरे. ठीक है? बट बेसिकली समझ में आया? रियल नंबर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, rational and irrational. ये बात खत्म है ना? इंडिया इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, हिंदी स्पीकिंग एंड नॉन हिंदी स्पीकिंग. ठीक है? चलो, नाउ दिस rational number, see this rational number is further divided into two parts. ठीक है? फर्स्ट क्या है? integers and second are non-integers or fractions. Non-integers are also called as fractions, है ना? They are also called as fractions. Fractions, right? ठीक है? Now this integers is in our syllabus, first chapter है जो तुम लोग पढ़ रहे हो, है ना? So basically, what is integer? बताओ, what is integer? If I have to ask, what is integer, right? Just message me. Just message. ठीक है? क्या लगता है integers क्या है? तुम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हो ना, राइट? क्या लगता है what is integer? कैसा नंबर इंटीजर? कोई बताएगा? नेगेटिव एंड पॉजिटिव. Sir, integers are the collection of positive numbers and negative numbers including 0. बट सी दिस 11 by 2 नंबर नहीं है क्या? 11 by 2 is number, right?
10 by 14 is also a number. Minus 3 by 5 is also a number, right? But these are not integers. है ना? Sir, integers also have a whole number, sir. Okay. Okay. So see this. So I can say that integers are, what are integers, right? पहले हम लोग definition देखेंगे, पहले इसका definition, ठीक है? अभी देखते हैं integers क्या है, हम लोग देखेंगे, ठीक है? अच्छे से, right? So ठीक है, अर्पिता ने बोला the numbers which aren't in fraction are integers, ठीक है, वो भी बोल सकते हैं, है ना? Now see this, integers is basically divided into two parts, है ना? Negative integer and whole numbers, right? है ना? So whole numbers are also called as non-negative numbers, non-negative numbers, non-negative integers actually, non-negative integers, ठीक है? Okay, Tuvishka, right? So whole number are called as non-negative integers, right? Or whole number, है ना? So integers are further divided into two parts: negative integer and whole number. Okay, yes. Then next, this whole number is further divided into zero and natural number, है ना? Zero and natural number. Now this natural number is also divided into different parts, ठीक है? जैसे देखो क्या आता है, natural number भी different part में divided है ना? The most basic is prime number, है ना? Then composite number, then co-prime numbers, right? There are different type of natural number also, है ना? So this is my flow chart of real numbers. So real number is divided into two parts. कौन-कौन से हैं? Rational and irrational. Now rational is divided into two parts: integer and non-integer. ठीक है? Then integer is divided into two parts: negative integer and whole number. Now whole number is divided into two parts: zero and natural numbers. A natural number can further divide into prime number, composite number and co-prime numbers. ठीक है? Any issues? Now, the first definition is natural number, right? Before studying integer, we should know what is your natural number. So natural number as per definition is your counting numbers, है ना? तुम count किसको करते हो? 1, 2, 3, 4 इसको count करते हो ना? कि 1 by 2, 3 by 4, 5 by 8 इसको count करते हो. Obviously 1, 2, 3 को count करते हो, right? So basically the counting numbers, right, are your natural numbers, which is from 1 to infinity. So I can say that natural number is from 1 to infinity, right? सबको समझ में आता है? जूनियर क्लास में पढ़े हमने. होल नंबर क्या है? Yes, don't worry, I'll send the notes. Okay, don't worry about that. Okay, I'll make a notes, I'll make a PPT and I'll send it to you. ठीक है? अभी सिर्फ समझो, don't worry about that. Okay, clear है? You just understand what is the definition. अभी बहुत basic से start करेंगे, ठीक है? Then we'll go to a deeper concept. ये बहुत अच्छा important chapter है, ठीक है? Then whole number. When we talk about whole number, it is natural number with zero, है ना? So whole number is natural number with zero, ठीक है? Then आता है integers, ठीक है? अब देखो integer definition क्या है? देखो integer definition क्या है? जो तुम लोगों ने बोला, right? जो लोगों ने सही बोला, it's basically natural number along with zeros and their negatives are called integers, है ना? Right? Means natural number, zero and their negatives are called as integers, right? And we know how to represent integers on number line. सबको पता है ना? जूनियर क्लास में पढ़े थे.
we'll have 0 as a reference, right? Then right side जाएंगे तो मेरा पॉजिटिव नंबर आएगा, लेफ्ट साइड जाएंगे तो नेगेटिव नंबर आएगा 1 2, राइट? और ये -1 -2 है ना। चलो अब इस पे एक छोटा सा सिंपल सा सवाल तुम लोग करो, 3 और 2 कौन बड़ा है? 3 बड़ा है कि 2 बड़ा है? वेरी गुड, सर 2 3 बड़ा है। हाँ सर 3 बड़ा है, सर 3 बड़ा है ना। हाँ वेरी गुड, बट इफ आई आस्क यू -3 और -2 कौन बड़ा है? सर -2 -2, राइट? हाँ वेरी गुड, -2 सबको समझ में आता है ना? हाँ, ठीक है, so I can say that when you go from left to right, when you go from left to right in a number line, the number increases, है ना। अगर हम ऐसे जाएंगे तो नंबर क्या होगा? बड़ा होते जाएगा, और अगर राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो नंबर छोटा होता जाएगा। मेक सेंस? ठीक है, वेरी स्मार्ट। ओके, then rational number. So we know the definition of rational number, right? The number which can be expressed in form of p by q, where q should not be 0, है ना। और irrational number, the number which is not rational number is your irrational number. Make sense? ठीक है, so ये basic definition था। So I guess सबको basic definition समझ में आ गया होगा, है ना। चलो अभी हम फिर से स्टार्टिंग से देखते हैं, तो हम लोग रैशनल नंबर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नाउ सी दिस रैशनल नंबर, ओके। तो यहाँ से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे ध्यान देना। नाउ रैशनल नंबर्स मैं बताता है ना, सी रैशनल नंबर क्या हो गया? जैसे रूट के अंदर जितने भी नंबर्स होंगे, राइट, रूट 3, right? These are rational numbers. Okay. Now मेरा एक सवाल है, ये 1.5 ये किसके अंदर आता है? बताओ, ये 1.5 किसके अंदर आएगा? What kind of number is this? या मैसेज? डेसिमल। ओके, तो डेसिमल किसके अंदर आएगा? हमने तो इसमें डेसिमल देखा ही नहीं। Decimal will be rational or irrational, or can be both. My question is this: can a decimal number be irrational number? सर rational हाँ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, right? rational So all decimal numbers are rational. yes Yes. yeah Okay. Now before going to that, we will see the types of decimal numbers. ठीक है, अब ध्यान दो, मैं 4 टाइप के डेसिमल नंबर लिख रहा हूँ। 1 पॉइंट, ये बार का मतलब समझ में आता है? बार का मतलब ये रिपीट करते जा रहा है, ये इन्फिनिटी जा रहा है। सो दिस इज फर्स्ट रैशनल नंबर, इसको एक्स बोलता हूँ मैं, सॉरी फर्स्ट डेसिमल नंबर। फिर ये दूसरा डेसिमल नंबर, और ऐसे ही कुछ कुछ इनबिट में जा रहा है ना। नाउ तीसरा z, ठीक है। अब बताओ क्या लगा तीनों में रैशनल कौन सा है, इरैशनल कौन सा है? सोचो एक बार। डेफिनेशन सोचो, ठीक है। और देखो x y z में कौन रैशनल कौन इरैशनल, ठीक है, तन्मय ने बताया, ठीक है। टेंशन मत लो, सही गलत कोई दिक्कत नहीं है,
बट एक बार सोचो, ठीक है रागिनी? अच्छा पहले बताओ कि x जो डेसिमल है, राइट, इसको कैसा डेसिमल बोल सकते हैं? इसमें क्या है? 33333 जाते जा रहा है ना, ठीक है, बहुत लोग आंसर कर रहे हैं। सो ध्यान दो यहाँ पे, सी फर्स्ट दिस डेसिमल नंबर्स ओके आर रिटन एज, देखो यहाँ पे ये क्या है, ये 3333 रिपीट करते जा रहा है, तो कभी ये खत्म होगा क्या? नहीं ना, ये कभी खत्म नहीं होगा, ये हमेशा चलते जाएगा। वेरी गुड निकेतन। सो दिस इज कॉल्ड एज, ध्यान दो, दो तरह के होते हैं, इट इज कॉल्ड एज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ध्यान दो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ठीक है। तो डेसिमल नंबर्स का फर्स्ट टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, लिख लो, फर्स्ट टाइप इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। जैसे देखो x खत्म नहीं हो रहा है, सो खत्म नहीं हो रहा है, सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? जो खत्म हो जाए, रुक जाए, है ना, ये खत्म नहीं हो रहा है ना, तो चलते जाएगा, 33333 चलते जाएगा, है ना, दैट्स इट, दैट्स व्हाई इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। और देखो यहाँ पे ये 3333 रिपीट कर रहा है पूरा, दैट्स व्हाई इट इज रिपीटिंग, है ना। सो फर्स्ट इज नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, सबको लिख लिया, ठीक है। नाउ सेकंड non-terminating and non-repeating, non-terminating, non-repeating, non-terminating, non-repeating, right? Example कौन सा है? बताओ। Sir, why? Yes, very good. Why, है ना, why देखो, why भी जाते जा रहा है कि नहीं, खत्म नहीं हो रहा है, बट रिपीट नहीं कर रहा है, सो why is नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है। एनी इश्यूज? सो डेसिमल एक, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग दूसरा, नॉन टर्मिनेटिंग Sir, नॉन रिपीटिंग, not repeat. वेरी गुड, राइट। थर्ड बताओ z, ये क्या है? टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, है ना, Terminating and non. नॉन रिपीटिंग, वेरी गुड। सो डेसिमल So नंबर्स, how? देखो ये खत्म हो जा रहा है ना, खत्म हो जा रहा है, राइट, और अगर कोई नंबर खत्म हो जाएगा तो वो रिपीट तो करेगा नहीं, राइट, Yes. ओके। बी वेरी स्पेसिफिक, क्या समझ में नहीं आया, ठीक है। देखो x क्या है? दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये Non-terminating. जाते जा रहा है, जाते जा रहा है, जाते जा रहा है ना। I is also non terminating and z is terminating, पहले Terminating. ये करना है ना। Please mute yourself, everyone, please mute yourself. Okay, so I can say that, मैं इसको रब कर रहा हूँ पूरा, ठीक है, हाँ मैं समझा रहा हूँ फिर से। So I can say that they are terminating, ध्यान दो, terminating, right, या तो नंबर टर्मिनेटिंग हो सकता है, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग हो सकता है, या तो टर्मिनेटिंग Yeah, हो तो सकता है, terminating. हाँ यस, ये हो गया एक टाइप। नाउ सेकंड टाइप इज रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, सबको समझ में आया ये चीज, राइट। अब खुद सोचो, अब इसको कंबाइन करते हैं, ठीक है। Yes, sir. सो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग was x, है ना, 1.33333, that is non-terminating and repeating. Y was non-terminating and
नॉन रिपीटिंग। नाउ मेरा सवाल ये है, कैन वी हैव टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर? कैन वी हैव टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर? यस और नो? No, sir. No, sir. नो। वेरी गुड, राइट? सबको समझ में आ रहा है ना? बिकॉज अगर वो खत्म हो गया तो रिपीट कैसे करेगा? क्लियर है? हाँ, वेरी गुड। सो आई कैन से दैट वी हैव ओनली 3 टाइप ऑफ डेसिमल्स। ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है? सो फर्स्ट इज नॉन टर्मिनेटिंग, Non-terminating. रिपीटिंग, Repeating. नॉन टर्मिनेटिंग, Non-terminating. नॉन रिपीटिंग, Non-repeating. एंड देन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है? So see this, I can say that if I'm having a real number in decimal form, ठीक है? ध्यान दो, real number in decimal form, so first it can either be repeating or non-repeating. सबसे पहला क्या है? Repeating and Repeating. Non-repeating. non-repeating. Very good, ठीक है? So अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, then it is your irrational number, ठीक है? Means y was irrational number. Non-terminating, non-repeating rational number. Non-terminating, non-repeating irrational number. ध्यान दो, NN. Non-terminating, non-repeating irrational, NNI. ठीक है? Non-terminating, non-repeating irrational. ठीक है? फिर NTR, junior NTR, non-repeating, terminating. ठीक है? is rational. ठीक है? और terminating, non-terminating, repeating is also rational number. क्लियर है चीज? है ना? सबको समझ में आ गया ये? 3 टाइप के डेसिमल नंबर्स, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, दोनों रैशनल नंबर. नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इज इरैशनल. ठीक है? वेरी गुड. सो बस याद ना, NNI is non-terminating, non-repeating, irrational. ठीक है? ये सबको समझ में आ गया? वेरी गुड. सबको समझ में आ गया ना? इसको दिक्कत है इसमें? ना, ये तो डेफिनेशन है, ये तो डेफिनेशन. मुझे कैसे पता चला? वेट, see, I'm again requesting, right? Don't unmute yourself, okay? So I'll explain again, right? So first, decimal number are of 2 types. ठीक है? Right? Depending on repetition, it is repeating and non-repeating. Right? I'm writing a shortcut. Okay. ठीक है? Repeating and non-repeating. That's basis of repetition. Then on the basis of termination, we have terminating and non-terminating. ठीक है? अब देखो, अब इसको कंबाइन करेंगे तो कितने टाइप ऑफ डेसिमल्स बनेंगे? टर्मिनेटिंग, सो आई विल राइट लाइक दिस A B. ठीक है? और इसको 1 and 2, राइट? सो देखो, अभी A और 1 को मैच करते हैं, तो टर्मिनेटिंग रिपीटिंग पॉसिबल है? बताओ. टर्मिनेटिंग और पॉसिबल नहीं है ना, बिकॉज अगर खत्म हो जा रहा है तो रिपीट होने का सवाल ही नहीं होता है. सो आई कैन से दैट TR, terminating non-repeating, is not possible. Not possible. ठीक है? Please mute yourself. Okay. So terminating, repeating, not possible. Okay. See, देखो,
अगर रिपीटिंग का मतलब क्या होता है, जो बार बार रिपीट करते जाए, है ना। अगर वो कोई नंबर खत्म हो जा रहा है तो बार बार रिपीट कैसे करेगा? द डेफिनेशन ऑफ रिपीटिंग इज इट शुड नॉट एंड। अब जैसे देखो, मैंने लिखा 1.325, कैन आई से दैट यहाँ पे रिपीट कर रहा है? रिद्धिमा, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ओके, you have unmuted yourself and you're unmuting yourself again and again. Sir, it is automatic. Okay, ठीक है. So see, right, this you understood now, 1.325, ये तो खत्म हो गया, नंबर खत्म हो गया. So can I say that कि 5 repeat करते जा रहा है? No, right? है ना? So I can say that this is your terminating and non-repeating. ठीक है? That's why terminating and repeating not possible. Possible ही नहीं है कि नंबर खत्म हो जाए और रिपीट करते जाए, है ना? ये चीज समझ में आ गया सबको? Why terminating and repeating is not possible? ठीक है, चलो next. Terminating, non-repeating, yes होता है ना? Then non-terminating, repeating होता है. My screen is visible, Ragini. Do one thing, try to leave and then join again. Okay, it will take you few seconds. Try to leave and then join again. Okay, because it is visible. Okay, okay, so see this, right? So terminating, non-repeating, non-terminating, repeating, then non-terminating, non-repeating. ये 3 टाइप के डेसिमल होते हैं, है ना? Now in these 3 types, these two, terminating, non-repeating, and non-terminating, repeating, are rational numbers, and non-terminating, non-repeating is your irrational number, right? सबको समझ में आ गया ये चीज at least? सबको समझ में आया तो हाथ उठा लो, थम्स अप कर लो, ठीक है? Yes, sir. वेरी गुड. बोलने की जरूरत नहीं है, बस थम्स अप कर लो, ठीक है? चलो, वेरी गुड, वेरी स्मार्ट. कितने स्मार्ट लोग तुम लोग, ठीक है? Now we know in theory that what is terminating, what is non-terminating. Okay, and I guess in teachers क्या होता है तुमको पता है, बताने की जरूरत नहीं है ना, सबको पता है in teachers क्या होता है ना? चलो, now just tell me this, I want to convert decimal into fraction, decimal into fraction, है ना? Right, and then fraction into decimal. How to do that? ठीक है, that's my problem. ठीक है, अब हम सिंपल से एक एग्जांपल लेते हैं. अच्छा बताओ, 1/4, right? 1/4 can be converted into decimal, है ना? If I say that every fraction can be converted into decimal, true or false? Every decimal
can be converted into fraction, and every fraction can be converted into decimal. Okay, just think, is it true or false? Okay, many are saying true. Okay, some are saying false also. Okay, now actually any fraction can be converted into decimal. Yes, it is possible. Okay, now we want to know what kind of decimal it will be. ये कौन मार रहा है? बेचारी बच्ची को कौन मार रहा है? ठीक है. So 1/4. So ध्यान दो. My aim is to know that what kind of decimal it is. ठीक है. We have three kind of decimals, है ना? Terminating, non-repeating, non-terminating, repeating, non-terminating, non-repeating. Right? So ये किस टाइप का डेसिमल है? तुम लोगों ने आराम से कैलकुलेट कर लिया 0.75. Very good, है ना? Now I want to ask, what is this decimal? कैसा है ये? Non-terminating, non-repeating, or terminating and non-repeating? कैसा है ये? 0.25. So it's 2 only. Handwriting is like that. Okay. हाँ, exactly. It is terminating and non-repeating. See, ध्यान दो, वही बोल रहे ना, ये खत्म हो गया ना, 0.25 बाद कुछ है क्या? नहीं ना. So it is terminating. Terminate हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है ना? ऐसे ध्यान देंगे. Terminate हो जा रहा है ना, खत्म हो जा रहा है. So it is terminating. And repeat भी नहीं हो रहा है, so it's non-repeating. So terminating and non-repeating. Any issue in that? Yes, exactly. तो विक्षा समझ में आया? Okay, ठीक है. So we will carry forward, right? Now, this was an easy problem. तो तुमने convert कर लिया. What is the method actually? So ध्यान दो. When you have to convert any number, see this. When you have to convert any fraction into decimal, है ना? So what you have to do is, नीचे वाले को ध्यान देना. तो aim क्या होना चाहिए? नीचे वाले को 10 का मल्टीपल होना चाहिए. ध्यान दो, है ना? This is the method. नीचे वाले को 10 का मल्टीपल होना चाहिए. Step by step. If I have to convert any number into a decimal, then the denominator should be multiple of 10, right? And how we can say that it will be multiple of 10? Okay. So there's a rule. If your Q can be written in form of 2 to the power m into 5 to the power n. ये m और n पावर है, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है. जैसे देखो यहाँ पे देखो. अच्छा एक चीज बताओ, 5 टू पावर 0 क्या होता है? किसको पता है 5 टू पावर 0 क्या होता है? सर 1. 0 sir. यस, वेरी गुड. नो 1, ये प्रॉपर्टी है, लिख लो सब कोई. एनी नंबर और एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1. ये इसको नोट कर लो, ठीक है? एनी नंबर टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है? चाहे कुछ भी हो. मैंगो टू पावर 0 इज 1, ठीक है? एनीथिंग टू पावर 0 इज 1, ठीक है? चलो. Now next, so I am saying that
Q should be in form of 2 to the power m 5 power n. अब देखो मेरा क्वेश्चन क्या था, 1/4 है ना, 1/4. Urvi, I said that any number के पावर 0, किसी भी नंबर का पावर 0 हो जाए ना तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा. जैसे 2 to the power 0 1, 3 to the power 0 1, right? 5862 to the power 0 1. ठीक है. So any number to the power 0 is 1. ये प्रॉपर्टी है, याद रख लो अच्छे से. ठीक है. So now what I'm trying to do, what is my motive? My motive is convert this x, which is a fraction p by q, into decimal. ठीक है. So how can we do that? And in terminating decimals, so what I can say is, if I'm having p by q, okay, so first this q, ये जो डिनोमिनेटर है वो कैसा होना चाहिए, 2 to the power, ये पावर है, पावर को मैं m लिख रहा हूँ. ठीक है. into 2 to the power n, sorry not 2, 5 to the power n. ठीक है. ये सबको समझ में आ रहा है क्या है, सबको समझ में आ रहा है ये क्या लिखा है मैंने. जैसे देखो 1/4 है ना, 1/4 क्या होता है, 4 is basically 2 into 2 है ना, 2 into 2, right? अब if 2 is multiplied 2 times, then it can be written as 2 square, the 2 to the power 2. समझ में आ रहा है, ये प्रॉपर्टी होती है पावर्स की. तो शायद नहीं पढ़े होगे तो देखो. ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ. ठीक है. अब जैसे देखो 8 है, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 into 2 cube. into 2 cube. 2. Yes, very good. So it is 2 cube, है ना, 2 3 बढ़ा रहा है. 16 is 2 to the power 4. 8 square. No, 8. 16 is 2 to the power 4. 8 into 2. Sorry. By mistake. Yes, right? 2 to So the सबको power. समझ में आया what is power? Yes, sir. अभी अगर मैं पूछूं write 80 है ना in form of powers, so 80 क्या होगा, 16 into 5. Yes or no? 80 is 16 to 5 ना. Now first you should remember the table till 20. सबको 20 तक का टेबल याद होना चाहिए. 7th में आकर 20 तक का टेबल तो याद होना ही चाहिए, है ना. So it is 16 into 5. Now 16 is 2 to the power 4 into 5 है ना, और 5 पावर 1 हो गया. ठीक है. अब समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ. ठीक है. So it has 2 to the power 4 into 5 power 1. ठीक है. चलो ना. अच्छा एक चीज बताओ, तुम लोग LCM HCF पढ़े हो क्या? Yes, sir. Yes, sir. सबको आता है HCF LCM, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड? आता है. Yes, sir. वेरी गुड. 124 जैसे 124 है ना, कैसे कर देते हैं, 2 फिर 64 सॉरी 62 फिर 2 से 31 है ना, ऐसे करते हैं. सबको आता है. वेरी गुड. Yes, sir. ओके. ठीक है. चलो. सो व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू कन्वर्ट. मैं एक नंबर लेता हूँ. ठीक है, 5/8. ठीक है. without dividing can you convert 5/8 into decimal without division?
बताओ कैसे करेंगे? ठीक है, बहुत लोगों ने आंसर किया. My question is, how can we convert this 5 by 8 into decimal without dividing? Divide नहीं करना है. Okay, Ragini, very good. See, I'll tell you the method, right? So first thing is 8, है ना? 8 क्या है? 2 cube, right? Into 5 to the power 0. 5 to the power 0. ध्यान दो. स्टेप बाय स्टेप लिखते जाओ, सोचो अच्छे से एक बार. 8 कैन बी रिटन एज 2 क्यूब into 5 to the power 0. ये इजी क्वेश्चन था, बट अगर बड़ा क्वेश्चन आ गया तो कैसे करेंगे? सो 8 इज इक्वल टू 2 क्यूब into 5 to the power 0. अब खुद सोचो, व्हाट इज 10? व्हाट इज 10? 10 इज 2 into 5, है ना? 10 square is 2 square into 5 square. 10 cube is 2 cube into 5 cube, है ना? तो तुम देख रहे हो 10 का मल्टीपल होने के लिए 2 और 5 का पावर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. सबको समझ में आ रहा है ना? The power of 2 and 5 should be same. Yes or no? Yes or no? Tell me, are you getting this? 10 is 2 into 5. I'll just explain again, right? 10 is 2 into 5. So 10 square is 2 square into 5 square. 10 cube 2 cube into 5 cube, है ना? वेरी गुड. सो देखो यहाँ पे, इसको अगर डिनोमिनेटर को 10 का मल्टीपल माना है तो यहाँ पे मुझे किससे मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ेगा? ये 5 पास 0 है, बट यहाँ पे क्या होना चाहिए था? 5 क्यूब. मीन्स आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 5 क्यूब. तो अगर मैं नीचे 5 क्यूब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ऊपर भी 5 क्यूब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इनटू 5 क्यूब. ठीक है, राइट? नाउ 8 into 5 cube. 8 into 5 cube, which is 2 cube into 5 cube, which is 10 cube, है ना? 10 cube. सबको ध्यान दो, सबको समझ में आ रहा है ये चीज, right? Why I am doing this? I want to convert the denominator in multiple of 10. So अब ये क्या हो गया? 5 cube is 125 into 5, 625. 625, है ना? Divided by 1000. राइट? ये सबको समझ में आया? सबको समझ में आया तो हाथ उठा लो. जिसको भी नहीं समझ में आया मैसेज कर दो. वेरी गुड, राइट? सी हाउ स्मार्ट यू गाइस आर, है ना? अब देखो, डेसिमल कन्वर्ट करना है, नहीं समझ में आया जोशवा? बताओ कौन सा स्टेप नहीं समझ में आया? बताओ कौन सा स्टेप ये नहीं समझ. मैं एक एक करके बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप. ठीक है? फर्स्ट स्टेप इज कन्वर्ट माय डिनोमिनेटर. कन्वर्ट माय डिनोमिनेटर, जो नीचे है ना उसको मल्टीपल ऑफ 10 में कन्वर्ट करना है. ठीक है? और मुझे पता है 10 क्या होता है? 2 into 5. 2 into 5, राइट? और मुझे क्या दिया हुआ है? 8, which is 2 cube into 5 to the power 0, है ना? 5 to the power 0, राइट? अब देखो ये 2 क्यूब है, तो यहाँ अगर 2 क्यूब होगा तो 5 क्या होना चाहिए? क्यूब होना चाहिए, है ना? बिकॉज 10 क्यूब इज 2 क्यूब into 5 क्यूब, राइट? तभी ये 10 क्यूब बनेगा, है ना? तो यहाँ पे ऑलरेडी 2 क्यूब है और 5 पर क्या है? 0. बट क्या होना चाहिए? 5 पर 3 होना चाहिए.
तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड 5 से 5 क्यूब से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, है ना, 5 क्यूब, राइट। सबको समझ में आ रहा है? अब समझ में आया क्यों ऐसा किए? क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर 10 चाहिए, 10 का क्यूब चाहिए। हाँ तो विशाल, आई एम रिपीटिंग ओनली, ठीक है, I'll just solve again. See step by step. 5 by 8, पहले दिया हुआ 5 by 8। So पहले मुझे चेक करना है कि can I convert this into terminating decimals? First step. So in order to convert this into terminating decimal, I have to check the denominator. Denominator should be in form of what? 2 to the power m into 5 to the power n, बस ये होना चाहिए। सबको समझ में आया यहां तक? ठीक है, अब देखते हैं 8 क्या है। 8 इज 2 क्यूब इंटू 5 पर 0। यस, सो इस फॉर्म में है, दिस इज इन दिस फॉर्म, सो इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना। ये सबको समझ में आ गया? Joshua, Tuvishka, got it? Got this one? First, you have to check कि can you convert this decimal into terminating decimal? Yes or no? Okay. Now, second question is how. So see this. I have to convert this decimal, this denominator, right, into multiple of 10. So how can you convert 8 into multiple of 10? That's the first question. So we know that 8 is equal to 2 cube, है ना? And in order to convert this into multiple of 10, I have to multiply 5 cube, ठीक है। तुमको ये ध्यान देना है कि 2 और 5 का पावर सेम होना चाहिए, ध्यान दो, 2 और 5 का पावर सेम होना चाहिए, है ना। अब ध्यान दो, यहाँ पे मैंने क्या किया, 5 क्यूब मल्टीप्लाई किया, तो ऑब्वियसली इस साइड भी 5 क्यूब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, राइट। ये समझ में आया यहाँ तक? ये स्टेप, थर्ड स्टेप। तो विश्वा, यू गॉट इट? जोशुआ, रागिनी, गॉट इट ना? ठीक है। नाउ हाउ कैन आई कन्वर्ट दिस इनटू दिस? सो देखो, डिनोमिनेटर में आई हैव टू मल्टीप्लाई बाय 5 क्यूब। तो हवास में थोड़ी ना आ जाएगा, अपने से थोड़ी ना आएगा ये, है कि नहीं। अगर डिनोमिनेटर में 5/3 कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में तो 5/3 होना चाहिए ना, तो न्यूमरेटर भी 5/3 हो गया, ठीक है। चलो अब सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 क्यूब इज 125 इंटू 5 625, हो गया 625 डिवाइड बाय 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब इज 10 क्यूब। 10 क्यूब इज एक पे 3 लड्डू, 3 लड्डू दे दिए, है ना, 3 लड्डू हो गया, राइट। अब ये 625 बाय 1000 डेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका पता है, जितना लड्डू उसके डिजिट बाद एक डॉट दे देते हैं, तो 3 लड्डू, सो 1 2 3, so it will be 0.625 625, got it, राइट। सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आना चाहिए, कोई भी नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। चलो वेरी गुड, ठीक है। सो अगर
2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म में नहीं है तो वो कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ठीक है, इसे देखो ये हो गया, ये भी हो जाएगा, राइट। नाउ ये तो टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग हो गया, है ना। तो 1/4, 5/8, this 13/5, you all can convert these into decimals, है ना, राइट, आराम से कर सकते हो। सो फर्स्ट क्लियर हो गया, फाइनाइट और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, राइट। चलो ना सेकंड क्या है देखो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं पीपीटी बना के भेज दूंगा ये सब, ठीक है, तो टेंशन मत लेना, ठीक है। चलो सेकंड इज रिपीटिंग, ध्यान दो, सेकंड इज रिपीटिंग डेसिमल्स, ठीक है, रिपीटिंग डेसिमल्स। जैसे देखो 2/3, 2/3 है ना, 15/7 क्या है, रिपीटिंग है, रिपीट करते जाएगा, राइट। जब रिपीट करता है तो हम बार लगा देते हैं, जैसे देखो यहाँ पे 6 रिपीट कर रहा है तो इस पे बार लगाएं। यहाँ पे देखो क्या रिपीट कर रहा है, बार कैसे लगाते हैं वो ध्यान देना। सो इफ वी टॉक अबाउट दिस सेकेंड एग्जांपल 15/7, सो देखो यहाँ पे रिपीट क्या कर रहा है, 2.14287, फिर 1428757 मीन्स ये जो 3+3 6 डिजिट है वो रिपीट कर रहा है, तो बार पूरे के पूरे 6 डिजिट पे लगेगा। समझ में आ रहा है सबको? सो यू अंडरस्टूड बार कब लगता है ना। चलो राइट, ठीक है, वेरी गुड। सो ये 3 स्पेशल पॉइंट्स हैं। देखो, एवरी रैशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड आइदर एज टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल, है ना। Every terminating decimal is a rational number and every repeating decimal is also a rational number, right? जो मैंने स्टार्टिंग बोल दिया था, ठीक है। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, ये सबको समझ में आया। आज हम लोग कोई होमवर्क नहीं देंगे, कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। The only homework would be इसको रिवीजन करना है और मैं 3-4 एग्जांपल्स कर दूंगा, ठीक है, उसको एक बार देख लेना, ठीक है। चलो, I hope all of you understood something and yes, I'll see you are in Google Classroom, right? So मैं Google Classroom में ही ये रिकॉर्डिंग पोस्ट कर दूंगा, ठीक है, Google Classroom में पोस्ट कर दूंगा और एक असाइनमेंट भी पोस्ट कर दूंगा। और क्विज, किसको किसको मजा आता है क्विज में, मैं क्विज भेज दूंगा, ठीक है। नाउ सी दिस वन थिंग, यहाँ पे वो कल्चर नहीं है कि डर के मारे तुम होमवर्क कर रहे हो, ठीक है। तुमको मजा आएगा, तुम करना, तुमको लगेगा कि फायदा हो रहा है, मुझे करना है तब करना, ठीक है। फॉर्मेलिटी या जबरदस्ती नहीं होगा, ठीक है। वेरी गुड देविका, वेरी गुड धनुष, ठीक है, मान्यता वेरी गुड, भेजता हूं मैं। तो तुम लोगों ने आज कुछ नया सीखा कि नहीं? वेरी गुड तन्वी, ठीक है। सी व्हेनेवर यू स्टडी समथिंग ना, यू शुड आस्क योरसेल्फ कि मैंने कुछ अच्छा और कुछ नया सीखा कि नहीं,
ठीक है, इफ यू कीप लर्निंग वेरी स्मॉल थिंग, न्यू थिंग डेली ना, तुम्हारा मेंटल एबिलिटी ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। एंड देयर इज नथिंग लाइक सिलेबस, ट्रस्ट मी ऑन दिस। जो समझ में आता है वो पढ़ेंगे, कौन से क्लास का है क्या है वो हमसे वो लोग नहीं सोचेंगे, ठीक है। जो समझ में आ रहा है वो पढ़ेंगे, जो नहीं समझ में आएगा वो छोड़ देंगे, ठीक है। चाहे वो 11th का ही क्यों ना हो, 10th का क्यों ना हो, 9th का क्यों ना हो, डजंट मैटर। समझ में आ रहा है पढ़ेंगे, नहीं समझ में आएगा पूछेंगे बार बार, ठीक है। चलो, वेरी गुड। नेक्स्ट क्लास वुड बी ऑन सैटरडे, ठीक है। और तुम लोग मुझे बता दो कि स्कूल के क्लासेस कब कब होते हैं, ठीक है। मैं उस हिसाब से क्लास अरेंज कर दूंगा, ठीक है। वेरी, ठीक है, थैंक यू एवरीवन, you have been very good students, I hope you will continue coming, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय दक्ष, बाय बाय एवरीवन।